Sri Sushil Chandraji, Honorable Chief Election Commissioner, Sri Rajiv Kumarji, Honorable Election Commissioner, Sri Anup Chandra Pandeji, Honorable Election Commissioner, and both former Chief Election Commissioners, Chawlaji and Aroraji, our representatives from various political parties, Umesh Sinhaji, Secretary General, Dharmendra Sharma ji, Senior DEC, National Award winners, future and new voters, media friends, ladies and gentlemen. First of all, I would like to extend my greetings to every fellow Indian on this very important National Voters' Day. This is the 12th occasion we are observing National Voters' Day. We all know the Election Commission of India has a glorious history of 70 years journey, and we also know that it has transformed itself in the process. With the addition of new challenges, Election Commission of India has been aptly handling all the new opportunities and challenges both. I would like to extend special greetings and congratulations to all the new voters. It is very exciting to be a voter in India. Sometimes we don't realize the importance of being a voter in India. Being a voter in the largest democracy means you are part of the democratic process in the largest democracy of the world. Although it is a voting right, but for me, I always consider this voting right is a voting privilege. And this privilege, we should dearly hold it. Sometimes I also feel that to be a voter in India and to hold that card, the voter ID card, that card is the most important document in India. No other documents can render you the power and privileges that the voting card, the voter ID card can offer you. So we should celebrate it. So the young voters who are going to get this new voting ID card, please celebrate, understand the value of it. It's not the question of only voting to a person or a political party, but we are strengthening Indian democracy. The Election Commission has announced many awards, but for me, I would like to honestly say that the real award goes to the Election Commission of India. You have done a wonderful job. Both the former election commissioners are here, and so many of the people whom we have worked with. I have always said that I have fought 7 elections, although I may not look that old, but I have already fought 7 elections, and I have come across many dedicated election officers, be a porter, be an election officer on the polling day, observer, or be an election commissioner. I have dealt with so many, but I must say one thing, the amount of dedication every member of the team puts in, that makes Indian democracy successful. We celebrate and we normally talk about Indian democracy and the success of Indian democracy, but the root cause of the success of Indian democracy is the successful electoral system in India. Without successful election, democracy just cannot sustain. Recently, we passed some amendments in the parliament. Due to
so much of ruckus and problems in the parliament, I was handicapped that I could not explain. I wanted to speak at length about the benefits of the 4 amendments which we have brought in the election laws, but there were issues in the parliament. Don't worry, I'm not going to explain here in detail. मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूं कि जो हम कहना चाह रहे थे और जो इलेक्शन कमीशन ने जो मेहनत किया और जो हमारे मंत्रालय के हमारे सेक्रेटरी मैडम और पूरा टीम यहाँ है डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच के, जो तालमेल किया वो लोगों तक जाना चाहिए। जब कोई अच्छा काम होता है और उस अच्छा काम के पीछे जो लोग लगे हुए हैं उनका चेहरा भी तो आगे आना चाहिए कि सुशील चंद्र जी, आपके दोनों कमिश्नर्स और टीम ने क्या किया है। वो भी अगर मुझे 2 मिनट या 10 मिनट अगर पार्लियामेंट में बताने का मौका मिलता तो मुझे भी बहुत खुशी होती। तो आपका अच्छा काम मुझे पार्लियामेंट के फ्लोर में बोलने का मौका नहीं मिला, इसके लिए मैं ज़्यादा दुखी हूँ। लो तो चलो पास हो गया, कम चर्चा किया, हमने पास कर दिया, अच्छी बात है। आपके टीम हमारे ऑफिस में बहुत बार आए और आपके इलेक्शन कमीशन के टीम और मेरे मंत्रालय के सारा अधिकारी आपस में रेगुलर टच में रहते हैं। मैं खुद 3 बार रिव्यू मीटिंग लिया और आगे भी जाकर के बहुत और रिफॉर्म्स लाना है। इसका कोई यहाँ मुझे जिक्र करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे मन में भी बहुत इलेक्शन रिफॉर्म्स का चीज़ सोचा हुआ है और आपके मन में भी है। और इलेक्शन कमीशन और हमारे विधि और न्याय मंत्रालय के बीच में जो तालमेल है, ये अच्छा तालमेल ऐसे ही बना के अगर हम रखेंगे तो हम बहुत जल्द जो भी रिफॉर्म्स लाना है वो हम ला सकते हैं। हम ये हमेशा मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम सबको अपना अपना रोल डिफाइन किया हुआ है, हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन तालमेल नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा। मैंने जुडिशरी के जितने टीम को भी यही बात मैंने दोहराया है, सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सारे हाई कोर्ट के जजेस, सबको भी यही कहा कि देयर आर लाइफ बियॉन्ड फाइल्स एंड फॉर्मेलिटीज। तालमेल होना चाहिए। हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के नाम में आपस में तालमेल नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, देश कैसे चलाएंगे। तालमेल बहुत अच्छी तरह रहना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इंटरफेरेंस हम नहीं करेंगे। अपने अपने सीमित बाउंड्री में रह करके अच्छा टीम के साथ, अच्छा स्पिरिट के साथ काम करना है और रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कोई इलेक्शन कमीशन को कोई क्रिटिसाइज करता है, डेमोक्रेसी में ठीक है, क्रिटिसाइज करने का राइट है, लेकिन भाषा का मर्यादा। अगर कोर्ट इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ कहता है, कह सकते हैं, कोर्ट के पास अधिकार है, लेकिन कोर्ट के जजेस को भी सोचना होगा कि क्या भाषा यूज कर रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन में जो काम करते हैं वो भी किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उसका भाव को समझना चाहिए। कमेंट पास करना आसान है, उसके पीछे जाकर के उसका तकलीफ, बैकग्राउंड को समझना ये आसानी नहीं होते हैं। आजकल हम लोग कहते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लगे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन में लगे हुए हैं। हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन सक्सेसफुल है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी योगदान है, लोग भारत की जनता का भी योगदान है। विदाउट द सपोर्ट of the political parties and without the cooperation of the people of India, nothing can succeed. ये है। तो इसीलिए अगर इलेक्शन कमीशन को लोग अगर तीखी आलोचना करती भी हैं, लेकिन एप्रिसिएशन भी करते हैं, दोनों है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम आलोचना करते हैं तो उसमें तथ्य होना चाहिए। There are efforts to discredit the Election Commission of India's effort. The steps and those elements whichever try to discredit Election Commission of India are actually trying to discredit the democratic process of our country. अगर इंडिया का डेमोक्रेसी को चैलेंज करना चाहता है तो उसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को ही चैलेंज करो, क्योंकि इलेक्शन का जो प्रोसेस फ्रॉड है
तो इट इज एक्चुअली अ फ्रॉड ऑन द डेमोक्रेसी। फुल प्रूफ नहीं हो सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स का जगह होता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो समय समय पे जैसे चैलेंजेस को हैंडल किया है, उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करने का बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जो कोविड-19 आया, बहुत लोगों ने सोचा है कि इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, कोविड आ गए हैं, इलेक्शन डेट आ गई है, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स कि इतने दिन में इलेक्शन होना चाहिए और सरकार का गठन होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आने नहीं दिया। एक दो स्पेशल रिलैक्सेशन के लिए हमारे पास फाइल आए, हमने किया, हाँ कोविड के चलते देयर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, हमने कुछ रिलैक्सेशन किया है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है उसको पूरा किया है। तो ये कोविड जैसे चैलेंज में काम करना, और अगर अभी इलेक्शन कमीशन कुछ किताबें ला रहे हैं सक्सेस स्टोरीज, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ऐसा जो पोलिंग स्टेशंस है वहाँ इलेक्शन कराना आसान नहीं है। एक जगह है वहाँ 2 वोटर थे और 2 वोट लेने के लिए 10 लोग जाते हैं, तो वोट तो 2 है लेकिन पूरा टीम जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई वायलेंस नहीं है, तो कोई सिक्योरिटी लोग नहीं जा रहे हैं, एक मुश्किल से जाते होंगे, अदरवाइज तो पूरा टीम जाएगा तो 50 लोग जाना पड़ेगा। और कई ऐसे भी जगह है कि वहाँ पहुँचना मुश्किल है। कुछ कहानी है, मैं कहानी यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें कई जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं अपना जान तक गंवाया है। कितने आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कितने इलेक्शन जो ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन के ऑफिशियल टीम के मेंबर्स अपने ड्यूटी के समय अपने जान गंवाया है। तो उनके लिए भी मैं समझता हूँ आगे भी याद हम लोग को करना चाहिए। अगर अवार्ड उनके लिए भी पोस्टुमसली भी हम लोग याद करना है तो करना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन मेनी डेडिकेटेड ऑफिसर्स, दे गेव देयर लाइफ टू कंडक्ट ए सक्सेसफुल इलेक्शंस। मैं और ज़्यादा तो कहने नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक दो बातें हैं जो अभी जो 4 इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है ये यंग वोटर्स है। अभी हमारे तीनों इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जिक्र किया है। पहले जो एनोमली था, मैं इसको सोच रहा था कि ये दिमाग में पहले क्यों नहीं आया या हमने एफर्ट क्यों नहीं किया, कि बोलता तो है कि आप 18 साल हो गए हैं, आपको वोटिंग राइट मिल गया है, लेकिन वोटिंग राइट तो कहाँ मिलता था बताइए। यू हैव एक्चुअली बिकम एन एलिजिबल वोटर बाई crossing 18 years of age, but there was no process that there was no provision that you can be included as a voter. तो मैं भी जब मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बनने के बाद ये मेरा दिमाग में भी आया कि 18 साल हो गए हैं लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते हैं। तो पहला तो मैंने कहा था, जब ये हमारे चंद्रभूषण पूरा टीम आए थे, मैंने कहा कि जब उसका क्वालिफाई होता है उसी दिन वोटर लिस्ट क्यों नहीं होना चाहिए। When you are 18 years old, immediately you must have the entitlement to vote. फिर there are some administrative challenges, तब जाकर के ये 4 qualifying dates आया। इसी प्रकार से जो जेंडर न्यूट्रल लॉ है, आप सोचिए हमने वहाँ वाइफ डाल के रखा हुआ है, हस्बैंड का कोई जगह ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया। कभी कभी पुरुष होना भी थोड़ा मुश्किल बात है, लेकिन हम लोग उसको झेलने का ताकत भी रखते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं कहूँगा। लेकिन जेंडर न्यूट्रल जो है, इसको लगता है कि छोटा सा एक ये अमेंडमेंट बिल है, लेकिन छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हमने किया है। इसी प्रकार से जो इलेक्शन प्रोमिसेस का लेकर के, और सबसे बड़ा जो आधार को लेकर के पॉलिटिकली जिसका विवाद बनाया गया है, वो तो जब पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि एक आदमी एक जगह से ज़्यादा 2 जगह 2 सूची में नहीं हो सकता है नाम, उसके लिए क्या करना चाहिए। ये आधार वाला सबसे इफेक्टिव है, और इसके अलावा भी मैंने तो उस समय कहा है कि किसी के पास में और भी सुझाव है तो वो भी दीजिए। इट इज बेसिकली फर्दरिंग द प्रोविजंस देयर इन द
People's Representation Act. We are a team. We may be from different political parties, but मिलके काम करना है. तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन के टीम और हमारे सरकार, खास करके हमारे जो डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा तालमेल के साथ जो काम कर रहे हैं. मैं भी बहुत खुश हूँ. और आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं तो एक अच्छा टीम भावना, टीम स्पिरिट के साथ हम आगे भी काम करेंगे. पुनः मैं आज जो अवार्ड विनर्स हैं, स्पेशली जो स्टेट से जितने भी जो टीम आए हैं, मैं आपको खास करके बधाई देना चाहता हूँ. बिकॉज यू हैव बीन गिवन सम अवार्ड्स, बट द मोर इम्पोर्टेंट अवार्ड इज द स्पिरिट इन विच यू हैव कैरिड फॉरवर्ड योर इलेक्शन ड्यूटीज. And you deserve special salutation from the people of the country for making all of us proud as a successful democracy. Once again, I pay my tributes to all those people who have given up their lives, who sacrificed their lives to conduct successful election. And again, thank you, Election Commission, for organizing this wonderful event. All the organizers, members of this organizing committee team, media team, and my last but most important congratulations message to all the young new voters of India. Be proud of being an Indian voter. Thank you very much. Jai Hind.